friends, how are you all? I hope all of you are fine and doing well with your study. So in our last class we studied about the refractive index. So in our today class we solved some numericals based on the refractive index. So first take a quick revision on your previous class. That is, we studied some of the formulas in case of the refractive index. Refractive index में बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े थे, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह पढ़े थे. उन चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि वो सारे न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्पफुल होगा. सो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? दैट इज स्नेल्स लॉ. व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? दिस इज द रेशियो बिटवीन द एंगल ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, which is a constant which is known as the refractive index, which is sin I by sin R is equal to refractive index. So what is the refractive index value? That is refractive index of the second medium with respect to first medium. So many students are confused in this term, that is n21 or n12. Many students are confused in this term, that is what is, if this term is n21 or n12, that is the ratio between the sin I and sin R. Please remember that sin I by sin R is the refractive index of the second medium with respect to first medium. Do not confuse. Okay, sin I by sin R is equal to refractive index of second medium with respect to the first medium. Then the second formula, how we can rewrite the refractive index. Refractive index of second medium with respect to first medium is equal with refractive index of second medium with respect to first medium. बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं, refractive index with respect to के बाद जो टर्म होगा वो आपका डिवाइड हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर बन जाता है. So n21 is equal to n2 by n1 or n12 is equal to n1 by n2. And then third term, which is the relation between the refractive index and the speed. Refractive index n21 is equal to v1 by v2. कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स होता है. अगर यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर फर्स्ट 2 आ जाता है, देन यहाँ पर फर्स्ट क्या आ जाता है? 1. अगर यहाँ पर सेकेंड में 1 है, देन यहाँ पर सेकेंड में आ जाता है 2. मतलब जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये हो जाता है रिवर्स. So n21 is equal with the v1 by v2 and n12 is equal with the v2 by v1. Then how many types of refractive index are there? First one is the absolute refractive index, which refractive index is compared with your vacuum or air medium, and the relative refractive index, which refractive index is compared with the two different medium but not with the vacuum. Okay, so these are the basic formulas of the refractive index and the factors on which your refractive index depends. First one is your optical density, your temperature, your wavelength of the light and the medium or the surrounding. Okay, these are the factors on which your refractive index depends. So let us solve some numericals which are based on your board exams. So here is the first question of one of your NCERT book, that the refractive index of diamond is 2.42. comment. बस इतनी ही क्वेश्चन है, that the refractive index of diamond is 2.42. comment. comment मतलब हमें इस चीज़ के बारे में या इस लाइन के बारे में कुछ लिखना है. What this line indicate? Okay, first the refractive index of diamond. अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, the refractive index of diamond D से ऐसे indicate कर देते हैं. Okay, the refractive index of diamond, यहाँ पर और कुछ कंपेयर नहीं किया गया है और कोई मीडियम नहीं बोला गया है. That means the refractive index of diamond is compared with the vacuum medium or the air medium. So refractive index of diamond with respect to the air medium is 2.42. Okay, so इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Refractive index of diamond is equal to C by V, because with respect to the vacuum medium. So refractive index of diamond, इसको कैसे लिखेंगे? Refractive index of diamond with respect to refractive index of vacuum is equal to velocity in case of the vacuum, which is C divided by velocity in case of the diamond. Okay, ये वाला क्या हो जाएगा? V d velocity in case of the diamond. What velocity? Velocity of the light. Okay, velocity of the light in case of the diamond. So this value is your 2.42. ये वाला वैल्यू हो गया आपका 2.42. सो अगर हम लोग इसको इंटरचेंज करते हैं, दैट इज वी डी इज इक्वल टू सी बाय
and D or C by 2.42. Okay, velocity of light in case of the diamond is equal with the speed of light in case of the vacuum divided by 2.42. तो इस एक्सप्रेशन का मतलब हम लोग क्या समझाए थे, that the speed of light in case of the diamond is 2.42 slower than the speed of light in case of the vacuum. What is the meaning of this expression? That the speed of light in diamond is slower than how much? 2.42 times slower than the speed of the light in case of the vacuum. Okay, what is the speed of light in case of the vacuum? If we calculate, अगर हम लोग को कमेंट करना है, that means हम लोग को सिर्फ इतने ही लिखना है, that speed of light, sorry, speed of light in diamond. Okay, speed of light in diamond is 2.42 times slower than speed of light in vacuum. Okay, so speed of light in diamond is 2.42 times slower than the speed of light in vacuum. This one is the answer. अगर हम लोग ऐसा अगर देखना चाहें तो what is the speed of light in case of the diamond? That is Vd is equal to what is the speed of light in the vacuum? That is 3 into 10 to the power 8 divided by 2.42. If we divide 3 by 2.42, it is approximately 1.23 something. अगर हम लोग approximate ले जाए 1.3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अगर हम लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है कितना, स्पीड ऑफ लाइट इन केस ऑफ द डायमंड इज 1.3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. मतलब देखो कितना रिड्यूस हो जा रहा है लाइट का स्पीड जब लाइट एंटर करता है आपका एयर मीडियम से डायमंड में. ओके, व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर मीडियम टू द डायमंड द लाइट रिड्यूस टू 1.3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इसीलिए तो आपका डायमंड इतना स्पार्किंग करता है, मतलब इतना लाइटनिंग करता है. आपका डायमंड आप लोग देखे होंगे ना, डायमंड बहुत स्पार्किंग करता है, पूरा चमकता रहता है. क्यों? क्योंकि जब लाइट एयर मीडियम से पास होकर आपके डायमंड के अंदर एंटर करता है, वहाँ पर उसका स्पीड आप लोग खुद ही देख सकते हो, 3 से आपका डायरेक्ट आ जाता है कितना, 1.3. मतलब आई थिंक 2 टाइम्स ये स्लोअर हो जा रहा है दैन द स्पीड ऑफ द लाइट इन केस ऑफ द वैक्यूम. तो बहुत स्लो होने की वजह से, बहुत स्पीड कम हो जाने की वजह से आपका जो लाइट हो जाता है वह लाइट आपके डायमंड के अंदर बहुत टाइम तक मूव करते रहता है स्लोली. इसीलिए आपके डायमंड के अंदर लाइट बहुत टाइम तक रह जाता है, जिसकी वजह से लाइट बहुत रहने की वजह से वो डायमंड आपका चमकते रहता है. ठीक है, सो दिस वन इज द first question about the refractive index. Then move to the second numericals. So this one is the second numerical. Refractive index of water is 1.5 and the speed of light in case of the air is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Then calculate the speed of light in glass. बहुत simple है that the refractive index of water is 1.5. I think this one is not water. Sorry. This one is your glass. Okay, refractive index of glass is 1.5 and speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So what is the speed of light in case of the glass? That is Ng is equal to C by Vg. Okay, obviously refractive index of glass किसके साथ कंपेयर हो रहा है, obviously वैक्यूम मीडियम के साथ ही कंपेयर हो रहा है. So Ng is equal to C by Vg. So what is Vg? That is Vg is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5, which is 2 into 10 to the power 8 meter per second. It is the answer. Okay. So what is the velocity of light in case of the glass? That is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Then move to the third question. So here is the third question. Given the refractive index of glass and given the refractive index of water and glass is 4 by 3 and 3 by 2. So what is given here?
the refractive index of water, that is NW, and refractive index of glass. So what is the refractive index of water? That is 4/3, and the refractive index of glass is 3/2. Write the relation and find the values of refractive index of glass with respect to water. What we have to find? That find the values of refractive index of glass with respect to water. Refractive index of glass with respect to water. Okay, what the value? Refractive index of glass with respect to refractive index of water. So what is the value? Ng. Ng is 3/2 divided by 4/3. ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3. 3 ऊपर चले जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 9/8. So what is the refractive index of glass with respect to water? That is 9/8. Then move to the fourth question based on the refractive index. What is the question? Light of wavelength 500 nanometer in case of the air medium enters a glass plate of refractive index 1.5. Okay, then find the speed of light in case of the glass medium, frequency in glass medium, and wavelength of light in case of the glass medium. So we have to find these terms: speed, frequency, and wavelength of light in case of the glass medium. And the light enters from the एयर मीडियम. ओके, तो यहाँ पर 2 मीडियम दिए गए हैं. एक हो गया आपका एयर मीडियम, दूसरा हो गया आपका ग्लास मीडियम. हम लोग को ग्लास मीडियम की केस में सारे ये टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक रिलेशन आप लोग को पहले ही बताए थे. दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी विच इज v म्यू एंड वेवलेंथ विच इज लैम्डा. म्यू इंटू लैम्डा. म्यू को हम लोग ऐसे सिंबल से भी हम लोग लिख सकते हैं, या ऐसे म्यू सिंबल से भी लिख सकते हैं. ओके, सो दिस वन इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस वन इज योर वेवलेंथ एंड दिस वन इज योर स्पीड ऑफ लाइट. तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग ये सारे टर्म्स को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो हम लोग को पहले पूछा गया है स्पीड इन ग्लास. स्पीड इन ग्लास मतलब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हो गया. refractive index in case of the glass is 1.5. That means refractive index in case of the glass is equal to C/V or Vg. Okay, so Vg यहाँ पर कितना हो जाएगा? C by refractive index Ng which is 1.5. तो C हो गया आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड ये हो गया आपका 1.5. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन केस ऑफ द गैस मीडियम which is 1.53. This is 2 × 10⁸ meter per second. Okay, so speed of light in case of the glass medium is 2 × 10⁸ meter per second. ये तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं द मेन टर्म. क्या क्या टर्म हम लोग फाइंड आउट करना है? which is the frequency of the light in case of the glass medium and wavelength of the light in case of the glass medium. सो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को गिवन में दिया गया है दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इन केस ऑफ द एयर मीडियम. एयर मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट इन केस ऑफ द एयर मीडियम, ए इंडिकेट्स द एयर मीडियम, इज 500 नैनोमीटर. नैनो मतलब कितना होता है? दैट इज 10⁻⁻⁹. 500 × 10⁻⁹ मीटर. क्योंकि हम लोग को यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज दूसरे यूनिट भी हम लोग की मीटर में है, तो हम यहाँ पर नैनोमीटर नहीं कर सकते. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन केस ऑफ द एयर मीडियम इज योर 500 नैनोमीटर विच इज 500 × 10⁻⁹ मीटर. तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है. तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे? दैट इज V = n लैम्डा. ओके, तो इस केस में क्या होगा? हम लोग को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है. फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू ही लिखते हैं. आप लोग नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में कंफ्यूज में हो जाओगे. तो न्यू लैम्डा, तो न्यू हो गया आपका कितना? सॉरी, न्यू = V/λ. हाँ कि नहीं? सो न्यू = V/λ करके हम लोग
क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं न्यू इक्वल टू न्यू इन केस ऑफ द एयर मीडियम। याद रखना क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ किसका दिया गया है, एयर मीडियम का ही दिया गया है। सो फर्स्ट हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे एयर मीडियम का। सो फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द एयर मीडियम इज इक्वल टू v by lambda, lambda in case of the air medium. So v मतलब velocity of light in case of the which medium, air medium. So velocity of light in case of the air medium which is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and lambda is 500 into 10 to the power minus 9, ओके, इंटू 10 टू द पावर -9। अगर आप लोग इस चीज़ को और मतलब इस चीज़ को अगर सॉल्व करोगे, इस न्यूमेरिकल्स को अगर सॉल्व करोगे, आप लोग खुद सॉल्व करो, दैट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10 टू द पावर -9, तो ये वाला टर्म कुछ आएगा आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 14। ओके, जब आप लोग ये टर्म को सॉल्व करोगे आपका आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 14, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज हर्ट्ज। ओके, सो दिस फ्रीक्वेंसी इज फॉर एयर मीडियम। एयर मीडियम के केस में आपका फ्रीक्वेंसी होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द ग्लास मीडियम, हम लोग को तो यहाँ पर पूछा गया है फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द ग्लास मीडियम। सो यहाँ पर एयर मीडियम का फ्रीक्वेंसी तो आ गया, अब ग्लास मीडियम का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। पहले ही एक चीज बता चुके हैं, दैट द फ्रीक्वेंसी नेवर बी चेंज, ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी नेवर डिपेंड्स ऑन द मीडियम, एयर मीडियम और ग्लास मीडियम। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। सो फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द एयर मीडियम एंड इन केस ऑफ द ग्लास मीडियम इज ऑलवेज सेम। फ्रीक्वेंसी दोनों ही सेम हो गया। अगर एक ही लाइट स्ट्राइक करके आपके एयर मीडियम से ग्लास मीडियम को जा रही है, देन लाइट का फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम ही रहेगी। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द ग्लास मीडियम, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द ग्लास मीडियम। सो थर्ड पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला था, दैट इज v इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो वेवलेंथ ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी इन केस ऑफ द ग्लास एंड न्यू इन केस ऑफ द ग्लास, वेलोसिटी इन केस ऑफ द ग्लास एंड फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द ग्लास मीडियम। ग्लास मीडियम में आपका वेलोसिटी कितना हुआ, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतना आपका वेलोसिटी था, एंड आपका फ्रीक्वेंसी कितना था, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, इतना आपका वेलोसिटी आया, सॉरी फ्रीक्वेंसी आया। तो इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा वो होगा आपका 333.3 नैनोमीटर। ठीक है, हम लोग इसको नैनोमीटर में ही इस वेवलेंथ को, क्योंकि यहाँ पर भी वेवलेंथ आपका नैनोमीटर में दिया गया था, तो इसी वजह से हम लोग ग्लास के वेवलेंथ को भी नैनोमीटर में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आप लोग को मस्ट सीखना है कि ये सब कैसे हो रहा है, ये सब जो सोल्यूशन वगैरह हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो रिजल्ट वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे इजीली ये सब फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे इजीली कन्वर्सन कर सकते हो, इस चीज़ों को प्रैक्टिस करो। तो इसीलिए वेवलेंथ ऑफ द ग्लास मीडियम, वेवलेंथ इन केस ऑफ द ग्लास मीडियम कितना हो गया, 333.3 नैनोमीटर। Okay, so this one is the wavelength of light in case of the glass medium. So these are the basic numericals, depends on your refractive index. और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग नेट वगैरह से भी ट्राई करो, बोर्ड के जो भी सैम्पल्स पेपर्स हैं उनमें से भी आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्राई कर सकते हो। अपने एनसीईआरटी बुक्स में भी देखो और डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो सब आप लोग देखो। ठीक है, उनको सॉल्व करने का ट्राई करो, जितना आप लोग सॉल्व करोगे उतना आपका आइडिया बढ़ेगा। बिकॉज आप लोग इन चीज़ों को अगर आप लोग सोचोगे कि हम लोग रट्टा मार के चले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर टाइम बोर्ड में डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोग फेस करोगे। ये नहीं कि इसी क्वेश्चन को लेके वहाँ पर रख दिया है। ओके, सो प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस एंड सम अदर डिफरेंट क्वेश्चंस ऑल्सो।
Okay, thank you.